more efficient, but at times reality होता नहीं है. So we are looking more of efficiency from the machines. We look for more accuracy because machines get trained to a certain logic, so it helps improve the accuracy of what we are delivering. We talk about cost efficiency, कम पैसों में ज़्यादा from that, how they fit into the current industrial scheme, and then I'll talk a bit about AR/VR because that is something in emerging tech that is also find quick data transfer. We talk about cyber security, we talk about big data analytics, we talk about smart manufacturing, and again the cyber physical systems. The holistic thing is the industry 4.0 was adopted where some efficiencies were brought in by the machines. Then came the 20th century where a lot of work was automated. And here we are in today's world where the jargons like India and Middle East. So this is the yeah. I just come quickly how we are relevant to the manufacturing industries, like especially like obviously we have the stakeholders involved here, how we can involve in their. So just want to clear out certain jargons that we have. What is artificial intelligence? Simply put, artificial intelligence is nothing but machines for smart marketplace of IT services where you can have a one-stop solution for all your IT needs. And if I look around, IT is so evolving right now. अगर मैं development work की बात करूँ, we do not have a stand AR, VR, be it a blockchain solution. We do not know a partner to go and get your solution done. Even like if I talk about the ever-evolving field of AI, like currently the requirement of GPUs, so or an AI solution, AR, VR solution, or anything related to digitalization. So again, we are a one-stop solution for that. So today's topic, I'll be covering on radiology and radiological image and also related to the development of the nuclear bomb. So for those of you who have seen the film Oppenheimer, this again brings up back memories that should we be careful about it? Is this a good thing? Professor Harmohan Khurana used to work earlier and currently Abhijit Banerjee works at this university. So we have a number of very distinguished people in different areas. My main affiliation is with the Computer Science and Artificial Intelligence Lab, which is also called as CSAIL, and it is located in India and Middle East. So this is the yeah. I just come quickly how we are relevant to the manufacturing industries, like especially like obviously we have the stakeholders involved here, how we can. Interested in this area, specifically got interested in reading a check automatically using whatever concepts are required. And around the same time, at an event which I had to organize, delegates came from around the world. हम मौजूद है IMA हॉल मेरठ में और आपको बता दें कि यहाँ पर एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया है जिसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कहा गया है और इसी विषय में चर्चा करने के लिए देश और विदेश के कई लोग यहाँ पर बुलाए गए हैं। हम जानते हैं हमारे साथ क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम है SP सिंह और मैं इस कन्वेंशन का को-चेयरमैन। कितने यहाँ पर स्पीकर बुलाए गए हैं? यहाँ पर 6 स्पीकर बुलाए गए हैं जिनमें से 5 इंडियन हैं और 1 US से हैं। मुख्य मुद्दा आज पर क्या रखा गया है? आज का मुख्य उद्देश्य ये है कि हमारे कॉमन जनरल पीपल को ये पता चले कि ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है क्या, इसका लाइफ में यूज़ क्या है और इसके हमको बेनिफिट्स क्या होने वाले हैं और इसके थ्रेट्स क्या हैं, रिस्क क्या इन्वॉल्व हैं, कहाँ हमारे साथ धोखाधड़ी हो सकती है, कहाँ हम इसको अपने प्रोडक्शन बढ़ाने में, कहीं पर अपने बहुत सारे कॉस्ट कट करने में। अभी तक जहाँ तक देखा गया है बार बार और लगातार इसके नुकसान ही गिनवाए जाते हैं, लेकिन फायदा क्या है थोड़ा सा वो जानना चाहेंगे। ये जो है इसके जो नुकसान गिनाए जा रहे हैं ना, ये भी एक थ्योरी चल रही है, ये होना नहीं चाहिए क्योंकि जब भी कोई नई टेक्नोलॉजी आती है वो थोड़ी डिसरप्टिव तो होती है। लेकिन जैसे कंप्यूटर आए थे बैंक्स में तो क्या सारे जॉब्स खत्म हो गए? बैंक्स में आज भी खूब भर्ती हो रही है। ऐसे ही इसको लेकर के हल्ला मचाया जा रहा है कि ये आ गई तो ये सारे जॉब्स डिस्प्लेस कर देगी, जॉब्स खत्म हो जाएंगे, लेकिन ऐसा होने वाला नहीं है। नए जॉब्स क्रिएट होंगे। ये एमर्जिंग एरिया है, एमर्जिंग टेक्नोलॉजी है और जब कोई नई चीज़ आती है तो उसमें दोनों पहलू होते हैं, वो बेनिफिट्स भी होते हैं और उसमें रिस्क भी होते हैं। तो इसके रिस्क तो हमने सब जान लिए, लेकिन बेनिफिट्स क्या हैं? आप प्रोडक्शन में यूज़ करिए, आप स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ प्रोडक्ट कर सकते हैं, स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ सर्विसेज कर सकते हैं, ह्यूमन का धीरे धीरे जो डिसीजन मेकिंग है उसको भी आउटसोर्स कर सकते हैं।
क्या नहीं कर सकते हैं आने वाले समय में। काफी फायदेमंद यस यस यस, इट इज गोइंग टू बिकम ए पार्ट ऑफ आवर लाइफ इन द इयर्स टू कम। कार्यक्रम में ये कार्यक्रम मेरठ मैनेजमेंट एसोसिएशन पल्लवपुरम में स्थित हमारी करीब 50 साल से पुरानी संस्था है, जो मैनेजमेंट स्टूडेंट्स और मैनेजमेंट प्रोफेशनल्स को अपकमिंग टॉपिक्स पर चर्चा करके उनको नॉलेज प्रदान कराती है। आज का क्या टॉपिक है? हमारा टॉपिक है आज का आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बून और बेन, कि इसका हमें इसे वरदान की तरह लिया जाए या ये हम पे एक थ्रेट है। इस पर हम चर्चा करके लोगों को ज्ञान प्राप्त करने का प्रयास कर रहे हैं। इस जो आज का ये विषय रखा गया है, तो इससे क्या मैसेज आप देना चाहते हैं? इससे मैसेज ये है कि देखिए, कोई भी टेक्नोलॉजी जब आती है तो उसके दो पहलू होते हैं कि क्या वो हमारे लिए फ़ायदा लेके आ रही है या नुकसान। उस चर्चा से हम आज एक अपने इंटरनल नतीजे पर पहुंचेंगे कि क्या ये हमारे लिए वरदान रूप है, क्या ये हमारे लिए एक थ्रेट है, इससे हमें नुकसान हो सकता है या फ़ायदा हो सकता है। इस पर जो इस फील्ड के लर्नेड विभिन्न प्रकार के जो लोग आए हैं वो अपना चर्चा रखेंगे, अपना ओपिनियन रखेंगे। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कार्यक्रम के संचालक जिन्होंने इस कार्यक्रम से लोगों को, छात्रों को जानकारी दी कि क्या इसके फायदे और क्या नुकसान होने वाले हैं। कैमरामैन विजय राजा के साथ मैं अंजू चौधरी, जनवाणी, मेरठ।